17-year young boy like you in your age group had the dreams of cracking JEE but got paralyzed. डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हो सकता, you will live a life of typical vegetable. He cracked his entire chartered accountancy in one attempt. Story number 2 is of a similar age kid who suffered from Mumbai 2006 train blast. उसको भी बोला गया कि भाई कुछ नहीं हो सकता. He completed chartered accountancy and he did not stop after that. The CEO of HDFC Bank right now is a chartered accountant. The prior MD of HDFC Bank, Aditya Puri, was a chartered accountant. T.N. Manoharan is a Padma Shri chartered accountant. Arun Puri, the founder of India Today Group, is a Padma Bhushan chartered accountant. Do you know the relevance of the degree which you hold? Do you know the per capita income of India? 2,40,000 is the average yearly income of a person in India. I am able to see that an average Indian is going to earn 2,40,000, but I am going to earn 24 lakhs if I get a rank. The story completes there. आपको कोई भी जर्नी स्टार्ट करनी है ना, आप फाइनल डेस्टिनेशन देख ही नहीं सकते. अगर फाइनल डेस्टिनेशन देखोगे तो कुछ नहीं होगा. My dad tells me that hey Jinet, this is the IMB wall of fame. इसमें नाम आ सकता है क्या? मैंने बोला ये तो औकात के बाहर की बात है, पॉसिबल ही नहीं है ना. Now is the last exam. Only top 3 people get recognized. या तो आपको academic gold medal मिलेगा या all rounder gold medal मिलेगा. 120 people out of 450 people applied for all rounder gold medal. दूसरे लोगों ने तो apply भी नहीं किया. And out of 120 people, the professors were given profiles to vote. And जैसे आगम ने बोला कल बीजेपी का क्या हो पता नहीं, but I got 119 votes out of 120 votes. So 119 professors. The learning here is you don't keep looking at the goal, you keep looking at immediate goals. India में there are about 40 crore people who are doing a job, out of which 10 lakh people trying to start up. Ratio देख रहे हो? कितना परसेंट हुआ? And out of 10 lakh people who decided to start up, 9 lakh failed, 1 lakh succeeded. वो ratio देख रहे हो? So there is one thing which I always say that execution is strategy for breakfast. आप कितना भी प्लानिंग कर लो, प्लानिंग नहीं चलेगा, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. I can fuel you up, I can give you motivation, I can tell you a story, but इतने लोगों में से मुझे लग रहा है कोई एक बंदा होगा जो मैं अब बोलूंगा वो लिखेगा, और वो लिखेगा कल पढ़ेगा कि मेरे को ये 3 चीज करना है, उसके बाद पढ़ेगा कि मेरे को ये 3 चीज करना है, उसके बाद के दिन में पढ़ेगा मेरे को ये 3 चीज करना है. आज अगर आप 300 लोग इधर हो तो 60 or 700 people in other branches of JK Shah classes are also studying for your exam. क्या लगता है उसमें से रैंक नहीं आएगा क्या? वो रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी याद है कि नहीं? अपने ने तो 1.5 महीने मचा दिया, और वो लोग के पास भी उतने महीने हैं, अब भी नहीं मचाया, कल मचाएंगे. और हर महीने अगर आप जितना लैक्स हो रहे हो वो ना चांस कम हो रहे हैं. अभी 50-50 होंगे, फिर 51-49 होंगे, फिर 25-75 होंगे, और फिर आप बाहर निकल जाओगे. So what matters is not these 45 days. It definitely matters. We have given you a push enough. मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं. When I was student at JKSC, there were no video lectures. There were no video lectures back up. The study material of JKSC was not so neat at that point of time. Institute study material was not so neat at that point of time. But why did I clear, and why did I clear with a rank? Because I did not have Netflix. Because I did not have Instagram. Because I did not have Facebook. So अभी ना आपको डिसाइड करना है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना. Coming to actionable strategy. मेरा CA फाउंडेशन में 1 CPT था, 181 out of 200 मार्क्स आया. उस टाइम में पहले 10 लोगों को रैंक मिला था, अपने को 12 पे लगी थी, साला 12 में फर्स्ट आया, और सीए फाउंडेशन में रैंक नहीं आया. मैं 2 दिन रोया था, 2 दिन पूरा रोया था. स्टोरी सुनाने के लिए नहीं बोल रहा. सीए इंटर में इतना डिसाइडेड था कि मेरे पीयर ग्रुप से बेहतर तो करके रहूंगा. रैंक कौन सा डिजिट आएगा वो नहीं पता, रैंक आ जाए. I never studied for a rank, I studied for excellence. ये सिर्फ 3 Idiots का डायलॉग नहीं है. अगर आप सक्सेस के पीछे भागोगे नहीं मिलेगी, अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागोगे सक्सेस जग मार के पीछे.
आर यू बेटर एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू? अगर हो, डेफिनेटली यू हैव स्टार्टेड टू कवर द जर्नी, राइट? तो क्या आपको चाहिए कि शुड आई डिस्कस कि हाउ डिड आई डू माय सीए इंटर? आई हैड ओनली 3 months, सीए फाइनल आई हैड ओनली 5.5 months. आपके पास 6 महीने हैं अटेम्प्ट सुधारने के लिए या फिर जिंदगी बिगाड़ने के लिए. तो अगर 3 महीने ज्यादा मिले आपको तो उसमें पूरा गेम चेंज हो सकता है. कौन सी साइड पे आप चेंज करोगे वो मुझे नहीं पता. आई स्टडीड इन 5 phases, यू कैन से. आप लोगों को ये नोट डाउन करना चाहिए. Starting 15 July, you are on your own. You will be given a lot of lectures from JKSC. You will be given guidance. You will be given mentorship. But you are on your own fighting your journey. If I were you, I would spend the first 2 months in completion of my syllabus. अगर 6 पेपर है, सब्जेक्ट छोड़ दो, 6 पेपर है, मेरे पास 60 दिन है, मेरे पास 10 दिन एक पेपर के लिए है. This stage, what I will try and do is, I will learn. इसको मैं रीडिंग बोलता हूँ. At this stage, what I will try to do is I will retain, I will make a summary note of what I am trying to do. अगले 2 महीने जो होंगे उसमें what I will do is I will revise what I have already learned of my summary note. उसके बाद के जो 2 महीने हैं वो शायद नहीं मिलेंगे अगर आपने टाइम बिगाड़ा है तो. उसके बाद के 2 महीने में गेम चेंज होगा of people who refer institutes material, ICAI का RTP, ICAI का MTP, ICAI के amendments, ICAI के past papers. People who do it will change the game. And in this, people who write at least 2 tests will also change the game. मतलब at this stage you have to read and retain. At the next stage you have to revise. At the third stage you have to redeem by giving exams. That will determine after your January exams whether you will rejoice or repent. So now it is in your, it is who will decide what your next journey is going to be. Are you resonating till here? समझ में आ रहा है? It's not tough to get the ranks which I have got. It's just execution. Have you heard a concept called Kaizen? Kaizen means small and incremental improvements every day. I want to ask you 3 questions to show a reality check to you. अच्छा, आप लोगों का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया क्या? अच्छा, how many of you know the concept of control ratios in standard costing? मेरे को तो बोला गया था कि 250 प्लस वाले बच्चे हैं फाउंडेशन में. Do you know what is an activity ratio, efficiency ratio and capacity ratio? No. यार ये तो JKSC मटेरियल में था ही नहीं, ये तो शायद सिखाया नहीं. मैंने बोला ये सब बहाने. The day you stop making excuses, your luck will stop making excuses in your success. The day you stop making excuses, the luck will stop making excuses in your success. अगर ये 3 रेशियो नहीं पता ना, 2000 में ICAI ने इसको टेस्ट किया था, उस टाइम भी मॉड्यूल में नहीं था, आज भी स्टडी मटेरियल में नहीं है. अगर ये आपको नहीं पता 300 लोगों को और मुझे पता है, that is the recipe for a rank. सब्जेक्ट चेंज करें. I will come down to easier questions now, right? अच्छा, लेवरेज चैप्टर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. इंस्टीट्यूट कैसे मस्ती करता है वो देखिए. इन द लेवरेज चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने ये पूछा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ऐसा पूछा गया, फाइंड अर्निंग्स यील्ड रेशियो. ऑनेस्टली बताना, इतनी जनता में अर्निंग्स यील्ड रेशियो का फॉर्मूला किसको पता है? आपने तो सपोजिटली 250 प्लस स्कोर किए थे. लेवरेज के चैप्टर में अर्निंग्स यील्ड रेशियो पूछा गया था इन द सेम सम वेयर ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज वाज आंसर. एमपीएस अपॉन ईपीएस तो सबको पता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस लोगों को नहीं पता. ये तो प्रॉब्लम है, रैंक इसलिए नहीं आता. समझ लो, मैं मोटिवेशन देता ही नहीं, मैं रियलिटी चेक बताता हूं. 2 टाइप के लोग बाहर निकलेंगे इस रूम से, एक जो डिप्रेस हो जाएगा और एक जो सक्सीड हो जाएगा. सक्सीड होने वाला बंदा डिप्रेस 5 मिनट के लिए होगा और बोलेगा ना भाई सही है. अच्छा, ये बताओ, इससे भी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं. डू यू नो व्हाट इज अ डिजायरेबिलिटी फैक्टर?
कैपिटल बजटिंग, डू यू नो इंस्टीट्यूट आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट डिजायरेबिलिटी फैक्टर। जब पेपर आया ना, पेपर जब आंसर सजेस्टेड आंसर आया ना, तब लोगों को पता चला 99% एप्लीकेंट्स कैलकुलेटेड इट रॉन्ग। डू यू नो व्हाट इज डिजायरेबिलिटी फैक्टर? 300 लोग हैं इस यहाँ पे, याद रखना वो 6700 में मेरा जैसा कोई बेटा है जो ये पढ़ाई कर रहा है। आपको जिधर लगता है ना कि मेरा ये छूटेगा, ये तो ऑप्शन में जा सकता है, इसका तो एवरेज ही नहीं है एबीसी एनालिसिस में, आपके अटेम्प्ट में डेफिनेटली वो आपके पीछे है। तो आपको इतना कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना पड़ेगा कि मेरी बेंच में बाजू में जो बैठा है उससे मेरे को ज्यादा आना चाहिए। तो what you should take away from this entire discussion of all these three people is, रूम में बाहर जाके लोग दो कैटेगरी में बच जाएंगे। एक कैटेगरी जो रील देखेगा, दूसरा कैटेगरी जो भविष्य बनाएगा। An average Indian spends 180 plus minutes on reels. A Gen Z kid like you spends 450 reels in 3 hours. ये हम कर लेते हैं तब पता नहीं चलता। याद रखना, किसी भी इन्फ्लुएंसर का रील देखते हो या कुछ भी देखते हो ना, बाजू में देखना क्या बाजू वाला वो इन्फ्लुएंसर है, नहीं है। उसके बाजू में देखो वो इन्फ्लुएंसर है, नहीं है। 300 लोगों में कोई नहीं है, तो 300 लोग तो पैसा नहीं बना रहे भाई, वो 300 लोगों पे कोई पैसा बना रहा है। तो नेक्स्ट टाइम सोशल मीडिया देखते टाइम ये करना कि भाई एक रील मतलब मेरा एक मार्क गया, एक रील और एक मार्क, एक रील और एक मार्क, और फिर क्या होता है, फिर हम 200 से अंदर आ जाते और फिर 50 से अंदर आ जाते। नेटफ्लिक्स वाला रेकमेंडेड फॉर यू, नेटफ्लिक्स वाला जो रेकमेंडेड फॉर यू लिखता है ना, रेकमेंडेड फॉर यू, वो आपका डेथ नोटिस होता है। अगर उस पर एक बार क्लिक कर लिया तो पूरा एक सब्जेक्ट निकल जाएगा। So what I will request you is, it does not require intelligence to get a rank. Do you know the most mediocre student in the class turns out to be the most successful entrepreneur in life? क्योंकि उसको पता है यार इंटेलिजेंस को भागने दो, मैं तो हर एक दिन बेटर होता जाऊंगा और जीतता जाऊंगा। बस मेरे को क्लास से बाहर जाके दो कैटेगरी में लोग चाहिए। एक कैटेगरी को जो रात को 15 मिनट आज सोचेगा कि जिनेश सर ने क्या बोला और उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, और कैसे मैं ये 6 महीने में पहले 8 घंटे पढ़ूंगा, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे और फिर 14 घंटे। क्योंकि जो 14 घंटे पढ़ रहा है और जो 8 घंटे पढ़ रहा है उसमें सिर्फ 50% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का डिफरेंस है? मैथ खराब है, कितने परसेंट का डिफरेंस है? मैथ खराब है, कितने परसेंट का डिफरेंस है? 8 2 जार क्या होता है? तो क्या 50% का डिफरेंस है? क्लोज टू 100% का डिफरेंस है। जो 8 घंटे पढ़ता है और जो 14 घंटे पढ़ता है, कौन पास होगा और कौन फेल होगा आपको पता है। किसका रैंक आएगा किसका नहीं आएगा वो आपको पता है। सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रैंक ला सकता है, या फिर किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बना सकता है, या किसी को पद्मश्री दिलवा सकता है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब जाके हर एक प्रोफेसर का एबीसी एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, ओवर एनालिसिस करके हर एक नोट परचेज करने की जरूरत नहीं है। जितना इधर सिखाया जाता है उतना कर लोगे ना, काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अमेजिंग, थैंक यू।